Good morning, students. Once again, welcome to the class of the mathematics, class 8, chapter number 3, understanding quadrilaterals. Right? After completing the part 2, today we will discuss the part 3. Right? So, in the last part, we have seen the exterior and interior angle of the quadrilaterals. Right? In the exercise 3.2 and 3.1. Right? So, today we will discuss the exercise of 3.3, right? Exercise 3.3. But before that, we need to know the types of the quadrilaterals, right? Types of the quadrilaterals, and as long as हमको along with that we have to know about the properties of the quadrilaterals, right? So today we will see the types of the quadrilateral and the properties of the quadrilateral. So on the screen you can see that the first quadrilateral is parallelogram, right? Parallelogram, a quadrilateral with each pair of opposite side parallel, right? So here you can see the ABCD is a parallelogram. You can see on the screen ABCD is a parallelogram. Here I can show you the figure. You can easily see that A, B, C and D. This is the parallelogram, and BD, right, and AC. These are the diagonals, right? तो ये एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम यहाँ पर इसके सामने लिखी हुई हैं. इस टेबल को आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने इसको स्क्रीन पे आपके लिए लाया है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट साइड्स का मतलब होता है द साइड्स विच आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. जैसे कि आप देखेंगे दिस इज द ए बी, और ए बी के जो अपोजिट साइड है दैट इज द डी सी. सो बोथ आर इक्वल, राइट? तो ये दोनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. एंड एज वेल एज यू कैन सी दिस इज द ए डी एंड दिस इज द बी सी. सो ए डी एंड बी सी आर ऑल्सो इक्वल इन देयर लेंथ, राइट? तो ये एक यहाँ पर प्रॉपर्टी हो गई, इसको आपको याद रखना है. अनदर प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट? सो व्हाट आर द एंगल? एंगल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ. तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दिस इज द एंगल ए, दिस इज द एंगल बी, दिस इज द एंगल सी एंड दिस इज द एंगल डी. So the opposite angles are, suppose angle A that is opposite of angle C, right? So angle A and angle C both are opposite to each other, है ना? और दूसरा अगर आप देखेंगे angle B and angle D they are also opposite to each other, right? So they are also equal. It means we can write that angle A, right, that is equal to angle C, right? Similarly we can also write angle D, right? Angle D that is equal to angle B, right? So in this way opposite angles are equal, opposite sides are equal. So these are the two important property of the parallelogram. So we are talking about the quadrilateral, and particularly what type of quadrilateral? We are talking about the parallelogram, right? Now the third property which is also very important, this is diagonal bisect each other. What does it mean? बाइसेक्ट का यहाँ पर क्या मतलब होता है? बाइसेक्ट का मतलब कोई भी डायगोनल अगर जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, सपोज यहाँ पर आप देख रहे हैं ए सी जो है वो बी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है. सो यू कैन सी देर इज़ अ मिड पॉइंट विच इज़ ओ, राइट? यहाँ पर आप मिड पॉइंट देख रहे हैं ओ. तो यहाँ पर आप क्या देख पाएंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ए ओ जो है, राइट, ए ओ, या फिर हम उसको ओ ए कहेंगे, राइट? ये आप देख रहे हैं दिस इज़ द ए ओ दैट इज़ इक्वल टू ओ सी, राइट? सो दिस इज़ द बाइसेक्शन, यानी कि ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, right? And here you can see that OD that is equal to OB, right? It means also that O is the midpoint of BD also, right? So this is the property diagonal bisect each other, right? जब कोई एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को इंटरसेक्ट करता है तो वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ द बाइसेक्शन, राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, राइट? अब हम नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल की तरफ जाएंगे. So the next quadrilateral is rhombus, right? So you can see that rhombus is here, right? Here you can see the rhombus PQRS is a rhombus, and you can see that rhombus follow the same property, because rhombus is also we can call it as the parallelogram, because here is also the opposite sides are equal, right? PQ, right? PQ that is equal to SR and RQ that is equal to SP, right? or PS. ये हम यहाँ पर देख सकते हैं, right? And what is the property of the parallelogram? all the property of parallelogram, यानी कि हम रोम्बस को पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं. तो जितनी भी प्रॉपर्टी हमने पैरेललोग्राम की देखी है वो सारी की सारी जो होंगी रोम्बस के ऊपर भी अप्लाई होगी, राइट? एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे सो यहाँ पर हम डायगोनल प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर प्रिपेयर नहीं किया है, सो वी कैन ड्रॉ द एस क्यू एंड वी कैन ऑल्सो ड्रॉ द पी आर, राइट। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जब पी आर एस क्यू को बाइसेक्ट करता है या फिर इसको इंटरसेक्ट करता है, सो यहाँ पर हम देखेंगे वी विल गेट द 90 डिग्री एंगल, राइट। दीज आर द 4 एंगल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, राइट। सो इसका मतलब परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं एस क्यू, राइट, एस क्यू, राइट, दैट इज परपेंडिकुलर ऑन पी आर, एंड ऑल्सो वी कैन राइट वाइस वर्सा, वी कैन ऑल्सो राइट वाइस वर्सा, राइट। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रोम्बस। नाउ वी कम टू द थर्ड क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर हम अगले क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे। सो अगला क्वाड्रिलेटरल क्या है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर, राइट। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल? नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल. So as you can see that rectangle is also the parallelogram because here the opposite sides are equal. So you can see that KL that is equal to NM and ML that is equal to KN, right. तो opposite sides बराबर हैं and opposite angle is also equal, right. यहाँ पर opposite angle भी equal है, right. and इसके जो diagonals है they also bisect each other, diagonals also bisect each other. Just like you can see that if I draw the KM, that is the one diagonal, and NL, right. So they are bisecting and this is the O which is the midpoint of both the diagonals. So all the property of the parallelogram that is applicable to the rectangle. Each of the angle is a right angle, right. यहाँ पर हम देख रहे हैं रेक्टेंगल में जितने भी 4 एंगल है ये सारे के सारे they are equal to 90 degree. It means we can write that angle K that is equal to angle L that is equal to angle M that is equal to angle N, and these all angle are equal to 90 degree, right. And diagonals are also equal. We can write Km, right, Km that is equal to Ln, है ना. यहाँ पर आप देख रहे हैं Ln और Km, these are the diagonals, so they are equal. तो रेक्टेंगल में आप ये प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं and they are also bisecting each other, right. All the property of the parallelogram is applicable in the rectangle because rectangle and rhombus both are the parallelogram. Now we come to the square. So square is also the parallelogram because opposite sides are equal and opposite angles are equal, right. ये भी हम इसको parallelogram बोल सकते हैं and the diagonal is also bisecting each other and diagonals are also equal, right. यानी कि यहाँ पर rectangle और parallelogram दोनों की property यहाँ पर applicable है as well as the rhombus. It means that we can say that square is the parallelogram, square is also the rhombus, square is also the rectangle, right. Square is also the parallelogram. तो square जो है it has lot of property of the parallelogram, rhombus and rectangle as well as, right. Now we see the quadrilateral, that is the kite, right. Kite, a quadrilateral which exactly two pair of equal consecutive sides. So here you can see that consecutive sides आप देख सकते हैं. consecutive side में अगर हम देखेंगे, suppose if we take the BC and the consecutive side that is the DC, right. So both are equal and here AD and AB both are equal sides, right. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं. and what is the property of the kite? The diagonal are perpendicular to each other. यहाँ पर अगर हम देखेंगे if we draw AC and BD, so you can see that we have the 90 degree over here. यहाँ पर हमको 90 डिग्री एंगल मिलता है. जो जहाँ पर भी हमको 90 डिग्री एंगल मिलता है वहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है. सो वी कैन राइट BD दैट इज़ परपेंडिकुलर टू AC, राइट. BD दैट इज़ परपेंडिकुलर टू, यहाँ पर मैंने जो उल्टा T वाला जो साइन बनाया दैट इज़ द साइन ऑफ परपेंडिकुलर इनटू द ज्योमेट्री, राइट. सो BD परपेंडिकुलर टू AC और वाइस वर्सा. AD इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BC, सॉरी AC इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BD, राइट. वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. यहाँ पर ये दोनों जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर जनरली आप जैसे देख सकते हैं ये जो डायगोनल हमने लिया है यहाँ पर इस तरीके से मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ ताकि ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इरेज ऑल दिस लाइंस एंड यू विल हैव द क्लियर पिक्चर, राइट. वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर AC जो है, सपोज AC इज़ नॉट इक्वल टू द BD, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं ये AC जो है ये BD को, यानी कि सपोज इफ़ आई टेक दिस इज़ द मिड पॉइंट O, राइट. ये वाला जो पॉइंट है दैट इज़ द मिड पॉइंट. सो वी कैन सी दैट DB that is equal DO that is equal to BO. It means that AC bisecting BD in the equal part or equally dividing, right. ऐसा हम बोल सकते हैं इसको, right.
and in the figure you can see that measure of angle B, right, that is equal to measure of angle D, यानी इसमें अपोजिट एंगल जो हैं वो बराबर हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एंगल ए और एंगल सी जो हैं दे आर नॉट इक्वल, राइट। एंगल ए that is not equal to angle C, but we can see that angle D that is equal to angle B। यहाँ पर ये दोनों जो एंगल हैं these are the angles which are equal, but these are not, ये दोनों एंगल जो हैं ये बराबर नहीं है, राइट। सो इन दिस वे वी हैव लर्नड द टाइप्स ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या क्या वो टाइप्स हैं हम उनके नाम रिवाइज कर लेते हैं। द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, rhombus, rectangle, square and kite, and the one that we will discuss the trapezium। यहाँ पर हमको trapezium भी डिस्कस करना होगा। trapezium के लिए मैं आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ ले चलता हूँ। trapezium की प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं दी हुई है, लेकिन trapezium के बारे में भी हम जान लेते हैं। trapezium also the one type of the quadrilateral which is also given in your book, and you will also have the question of the trapezium। तो trapezium के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ट्रेपेजियम कैसा होता है एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रेपेजियम। हियर वी कैन डिस्कस द ट्रेपेजियम इन द एक्टिविटी, राइट। सो आई विल शो यू द ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम is also the quadrilateral in which you can see that there are the two opposite sides are parallel and the two not, right। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेपेजियम का एग्जाम्पल। यू कैन सी दिस एक्टिविटी, राइट। दिस इज द ट्रेपेजियम। हियर you can see that ABCD is a trapezium। So here what you can see that AB that is parallel to DC, but AD is not parallel to BC। So in the trapezium we have the two parallel sides and two non-parallel sides, right। And in this trapezium you can also see that the two opposite sides may be equal and two opposite sides not may be equal, right। ये दोनों opposite sides जो हैं बराबर भी हो सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती है। जनरली हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर कोई दो पैरेलल साइड है, सपोज इफ़ वी टेक द AB एंड DC, तो ये यहाँ पर जनरली बराबर नहीं होती है। लेकिन हम यहाँ पर AD और BC की अगर बात करें तो ये नॉन पैरेलल साइड्स है। सो दे मे बी इक्वल और दे मे नॉट बी इक्वल, राइट। ये बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। इसलिए मैं यहाँ पर आपको दो तरह के यहाँ पर ट्रेपेजियम आपको बता रहा हूँ, जिसमें से एक ट्रेपेजियम जो होता है वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाता है। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वो ट्रेपेजियम होता है जिसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल होती है। यहाँ पर मैंने देखेंगे ब्लू लेटर्स में, यहाँ पर मैंने येलो लेटर्स में यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम आर ऑफ इक्वल लेंथ वी कॉल इट एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। यानी कि यहाँ पर जनरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस ट्रेपेजियम में ये दो नॉन पैरेलल जो साइड्स हैं दे आर नॉट इक्वल। सो दिस इज़ नॉट द आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। लेकिन अगर ऐसा होता, इफ़ सपोज दिस इज़ द 4 सेंटीमीटर एंड इट इज़ ऑल्सो द 4 सेंटीमीटर, देन इट कैन बी द आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, बट राइट नाउ इट इज़ नॉट द आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, राइट। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो ट्रेपेजियम जो है वो भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पर आप कुछ फिगर देख रहे हैं ट्रेपेजियम के। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई हैव हाईलाइटेड इन द येलो कलर, दिस आर द ट्रेपेजियम, राइट। यहाँ पर ट्रेपेजियम के ये टाइप्स हैं। तो आप देख रहे हैं सभी में आपको पैरेलल साइड्स और नॉन पैरेलल साइड दिख रही होगी, एंड दिस एरो, राइट, दिस एरोज आर शोविंग द पैरेलल साइड्स। सो ये जो यहाँ पर एरो दिख रहा है आपको, है ना, हियर यू कैन से दिस इज द एरो, राइट, दिस इज द एरो, दिस इज द पैरेलल साइड। या जहाँ पर मैं रेड डॉट कर रहा हूँ वहाँ पर ये पैरेलल साइड्स है, राइट। यहाँ पर भी आप देखेंगे दिस आर द पैरेलल साइड एंड दिस आर ऑल्सो द पैरेलल साइड्स, राइट। बट दिस इज़ नॉट द पैरेलल साइड, दिस आर नॉन पैरेलल साइड्स, जिसको मैं ब्लू डॉट से बता रहा हूँ। These are the non-parallel sides, right। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं these are the non-parallel sides and this is also non-parallel sides, ठीक है। तो कई बार ये non-parallel sides इक्वल भी होती है और कई बार इक्वल नहीं भी होती है। तो जिस ट्रेपेजियम में ये non-parallel side इक्वल होती है उसको हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं, राइट। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे ऑन दिस साइड यू कैन सी these are not the trapeziums, राइट। ये ट्रेपेजियम जनरली नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ फिगर यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ट्रेपेजियम एंड विच आर नॉट, राइट। नाउ वी कम टू द क्वेश्चंस इन क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ को हमने सब पढ़ लिया है, एंड नाउ वी कैन हैव सम क्वेश्चंस एंड द एग्जांपल्स कि यहाँ पर एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सो नाउ वी कैन सी द एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम, right, find the perimeter of the parallelogram। For that
यू हैव दिस फिगर, यहाँ पर आपको ये पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस दिया हुआ है और इस पी क्यू आर एस में हमको क्या निकालना है, वी वॉन्ट टू फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये जो पी क्यू साइड है that is the 12 centimeter and RQ that is also 7 centimeter. So according to the property of parallelogram, what we can see that this RS is also 12 centimeter and this PS is also 7 centimeter because the opposite side of the parallelogram are equal. So what we can do the addition of all the sides, right? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने एडिशन किया, so we have the 38 centimeter. So 38 centimeter जो है that is the perimeter of this parallelogram. So this is very easy question, right? उसके बाद यहाँ पर हम next example देखेंगे, right? We have seen the property of the parallelogram. Now we come to the question number 4. So in the question number 4 you have a parallelogram again this is the question of the parallelogram. तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे right hand side पे this best, right? The name of the parallelogram is best because the name of the vertices of that parallelogram BEST, right? That is the BEST, best, the name of this parallelogram. So what we have to find the angle X, angle Y and angle Z. एंगल X, एंगल Y और एंगल Z हमको यहाँ पर निकालना है, राइट? तो एंगल Y, एंगल Z निकालने के लिए यहाँ पर हमको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी, राइट? तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में हमने देखा द एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। एडजेसेंट एंगल, राइट? सो इस फिगर को मैं यहाँ पर एनलार्ज करके आपको बता रहा हूँ। ये फिगर आप देखिए, यहाँ पर इस फिगर में हम देखेंगे कि यहाँ पर इसको आप देखिए, ये फिगर है हमारा, राइट? सो हियर व्हाट इज़ द एडजेसेंट एंगल, राइट? तो एडजेसेंट एंगल में अगर हम देखेंगे तो ये जो एंगल बी है इसके राइट हैंड साइड में यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सो दिस इज़ द वर्टेक्स ई। ये यहाँ पर जो एंगल बी है दैट इज़ द 100 डिग्री, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे सो दिस इज़ द एंगल जेड। हम इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, नॉट द एक्सटीरियर। एंगल वाई इज़ एक्सटीरियर। यहाँ पर मैं एक्सटीरियर को रेड कलर में बताऊँगा। तो यहाँ पर जो ब्लू कलर में जो जेड एंगल दिख रहा है वो हमारा इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर एडजेसेंट इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, ना कि एक्सटीरियर की। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि अगर ये 100 डिग्री है, दिस एंगल इज़ 100 डिग्री, तो यहाँ पर ये जो जेड होगा वो 80 डिग्री होगा। जेड जो होगा वो 80 डिग्री होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमने कैसे निकाला, क्योंकि यहाँ पर सप्लीमेंट्री कह रहे हैं। एंगल बी जो है, एंगल बी प्लस एंगल जेड, राइट, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट कि यहाँ पर जब कोई दो एडजेसेंट एंगल होते हैं किसी पैरेललोग्राम में, तो द सम ऑफ दोज एंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इज द रीजन if we have the angle B that is 100 degree, so we have to subtract the 100 from 180, right? So we will get the 80 degree, and this is the reason we are saying that angle Z is equal to 80 degree, right? And now we have to find, यहाँ पर हमको इसी के साथ हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना पड़ेगा, x भी फाइंड करना पड़ेगा। सो अगेन फॉर दैट वी कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम अबाउट द एंगल? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट? अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो एज यू कैन सी दैट यहाँ पर हम देखेंगे एंगल x, यहाँ पर देख रहे हैं हम एंगल x, ये वाला एंगल x है। तो अगर ये एंगल 100 है तो ये भी क्या होगा? 100 होगा, बिकॉज दीज आर द अपोजिट एंगल्स। सो हियर वी कैन राइट angle x that is equal to 100 degree. So according to the property we can easily find it, right? And now we have to find the angle y. यहाँ पर हम इस डायग्राम को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हमको एंगल y फाइंड करना पड़ेगा, राइट? तो एंगल y फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? We will use the property of linear pair of angles. So as we know that linear pair of angle क्या होता है? linear pair of angle में हमने सीखा था कि एंगल z प्लस एंगल y दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दे आर ऑल्सो द सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि हम इन दोनों एंगल की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम इसको ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो साइड है एस ई, राइट, वी हैव दिस साइड एस ई, ये जो साइड है एस ई, दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, एंड स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम देखते हैं देयर इज़ द लीनियर पेयर ऑफ एंगल और उनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं कि एंगल z जो है वो 80 डिग्री है, right? So if suppose we have to find the angle y, so we have to subtract
80 degree from 80, right? So we will get the angle y. यहाँ पर हमको एंगल y जो होगा वो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर एंगल y दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री, राइट? सो एंगल y 100 डिग्री मिल गया हमको यहाँ पर, और एंगल z हमने 80 डिग्री निकाला था, और एंगल x जो होगा वो 100 डिग्री होगा, राइट? तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं. नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5. सो इन द एग्जाम्पल नंबर 5 व्हाट वी कैन सी दैट इन अ पैरेललोग्राम रिंग, यहाँ पर हमारे पास एक और पैरेललोग्राम है जिसका नाम है यहाँ पर रिंग. एज यू कैन सी द फिगर, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख पाएंगे रिंग, RING, यहाँ पर आप देख रहे हैं रिंग. रिंग जो है ये यहाँ पर हमको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और इस पैरेललोग्राम में एंगल R जो है, राइट, दिस इज द एंगल R दैट इज द 70 डिग्री. ये हमको 70 डिग्री दिया हुआ है, 70 डिग्री. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड अदर एंगल्स, राइट? हमको यहाँ पर अदर एंगल्स फाइंड करने हैं, तो हम बिल्कुल इजीली कर सकते हैं यहाँ पर. जैसे कि हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे फिर से. सो एंगल R का अपोजिट एंगल है एंगल N. सो एंगल N कितना हो जाएगा, यू नो दैट दैट इज ऑल्सो द 70 डिग्री बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट? एंड अगेन वी विल यूज द adjacent property, right? Suppose if angle R is 70 degree, so the adjacent angle I would be 180 degree minus 70, right? ये जो एंगल होगा, अगर एंगल R और एंगल I दोनों सप्लीमेंट्री हैं, so they should be equal to 180 degree. So if we subtract angle R from 180, right, so I will get angle I, right? So what would be the answer? The answer is 110 degree. So it means that एंगल I, यहाँ पर जो एंगल I होगा वो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा. एंगल I दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री. सो दिस इज एंगल I. एंड सिमिलरली व्हाट वी कैन सी दैट एंगल G इज अपोजिट ऑफ एंगल I. सो दिस इज ऑल्सो द 110 डिग्री. यहाँ पर ये एंगल भी 110 होगा. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. द नेम इज रिंग, राइट? तो ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, ठीक है? पैरेललोग्राम की हम सारी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं. नाउ वी कैन ऑल्सो डू द एग्जाम्पल नंबर 6, एंड फाइनली आफ्टर दिस एग्जाम्पल you will be able to solve the exercise 3.3. So in the question number 6 you can see that we have the parallelogram help, right? इस help parallelogram में हमको यहाँ पर OH फाइंड करना है, राइट? जैसे कि यहाँ पर इस फिगर को मैं आपको समझा देता हूँ पहले. तो आप इस फिगर को देखिए, तो यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है HELP, राइट? HELP ये आपका हेल्प, राइट? और इस हेल्प में आप देखेंगे, सो दिस इज द PE, दिस इज द डायगोनल, एंड HL दैट इज ऑल्सो द डायगोनल, एंड O इज द मिड पॉइंट. सो OE जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस इज 4, OE दैट इज 4, HL इज 5 मोर देन PE. HL जो होगा, ये HL जो है दैट इज 5 मोर देन PE, यानी इस डायगोनल से 5 ज़्यादा है, राइट? ये जो PE है उससे 5 ज़्यादा है. सो फाइंड OH. So you can see the solution on the screen. OE is equal to 4, right? Here I am reading OE that is equal to 4, then OP also 4. तो ये OP जो होगा वो भी 4 होगा. So PE कितना हो जाएगा, that is equal to 8. यहाँ पर आप देख सकते हैं PE that is equal to 8 because if we add this diagonals, this part, ये दोनों पार्ट को अगर जोड़ेंगे, so यहाँ पर जो हमारा PE है वो हमारा 8 हो जाएगा. So what is the HL? So we know that HL is 5 more than PE जो दिया हुआ है. सो 8 + 5 दैट इज इक्वल टू 13, राइट? सो हमारा जो HL होगा वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा. इफ़ HL इज 13, सो वी हैव टू फाइंड OH. यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, OH फाइंड करना है. सो OH, राइट, दैट इज हाफ, राइट? OH दैट इज हाफ ऑफ 13. सो हाफ ऑफ 13 दैट इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से यहाँ पर हम OH को भी आसानी से फाइंड कर लेंगे. सो स्टूडेंट्स, after completing these examples you will be able to solve the exercise 3.3, and just try it yourself and learn the property of the quadrilateral and the parallelogram. Parallelogram is very important in this chapter because most of the question they are asking about the parallelogram, right? So they may be asked about the trapezium and the square and rectangles. You can see this is the exercise on the screen. I am scrolling and there are total 9 questions are there, right? 9, and there is 10, 11 and 12. So this is very long exercise.
ये बहुत ही लंबी एक्सरसाइज है और इसका पीडीएफ भी हम आपको यहाँ पर ज़रूर सेंड कर देंगे, जैसे कि हर वीडियो के बाद आपको एक पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है जो कि आपको फेयर बुक में करना है, एंड जस्ट फर्स्ट राइट इन योर रफ बुक एंड देन डू इट इन योर फेयर बुक, राइट. सो जस्ट रेडी फॉर द exercise 3.3 and all the best for this exercise. Have a nice day. Keep watching, keep learning, keep enjoying the mathematics. Thank you very much.